آج 5 بجے کے بلیٹن میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں سعدیہ سیمسن اور میں ہوں علی عابد. بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عام مارکیٹ ہو یا پھر انتظامیہ کے تحت لگنے والے ہفتہ وار بازار اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. گھی، کوکنگ آئل، پتی، آٹا سمیت دیگر اشیاء کی قیمتوں میں 80 روپے کلو تک کا اضافہ ہو چکا ہے. اسلام آباد سے دیکھیے عدیل سرفراز رپورٹ کریں گے. گرمی کی شدت بڑھتے ہی مہنگائی کی لہر میں بھی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. سستے بازاروں اور عام مارکیٹ میں اشیاء خرد و نوش کے نرخ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. عام مارکیٹ میں گھی 480 سے 500، کوکنگ آئل 490 سے 520، پتی 80 روپے اضافے کے بعد 1200 روپے فی کلو ہو گئی ہے. 15 کلو آٹے کا تھیلا 1050 سے 1120 روپے کا ہو گیا. دال، ماش اور چنے کی قیمت بھی بڑھی. شہریوں نے کم آمدن میں گزر بسر کرنا ناممکن قرار دے دیا ہے. تنخواہ تک کے کیا دیہڑی دار بندہ تو بالکل ہی جو ہے نا پس کے رہ گیا. دن بدن بڑھائے جو مہنگائی ہے جی وہ عروج پہ جا رہی ہے. پیسے نہیں ہے کہ ہر چیز بندہ خرید سکے. سبزی اتنی مہنگی ہے، پیاز اتنا مہنگا ہے، ہر چیز مہنگی ہے. مہنگائی تو دن کے دن میں بس بڑھتی جا رہی ہے اور ہم دیہڑی دار بندہ ہے بس مزدوری کرتا ہے. آج کل ہم دیہڑی بھی لگاتے ہیں لیکن ٹیلے ایک تیلا آٹے کا وہ بھی نہیں آتا. شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے خاتمے کے نعرے پر بننے والی حکومت کی ترجیحات میں مہنگائی دور دور تک نظر نہیں آتی. مہنگائی جو ہے ان سے کنٹرول ہو نہیں رہی. ہر چیز جو ہے نا ٹماٹر دے کے، آلو دے کے، جو بھی چیز دے کے، ہر چیز کی قیمتیں جو ہے نا دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. سبزیوں کی یا فروٹس کی قیمت دیکھ لینا، یہ تو روزمرہ زندگی کی چیزیں ہیں، ڈیلی مطلب یوز کرنے کی ساری چیزیں مہنگی ہیں. شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ صرف اعلانات اور دعوے ہی نہ کیے جائیں، مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کو حقیقی معنوں میں ریلیف دیا جائے. عدیل سرفراز، آج نیوز، اسلام آباد. اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کراچی کے عوام کو بھی پریشان کر دیا ہے. شہری کہتے ہیں کہ منافع خور من مانی کر رہے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کراچی میں منافع خوری عروج پر. کیا سبزی، کیا مرغی، ہر چیز کے دام عام آدمی کی پہنچ سے دور. شہریوں کے لیے گھر چلانا مشکل ہو گیا. کوئی عام آدمی تو کچھ بھی نہیں لے سکتا، کچھ بھی نہیں لے سکتا. اللہ تعالیٰ گزارا کرا رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جس کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ مہنگی کر رہا ہے. کبھی مرچیں مہنگی ہو جاتی ہیں، کبھی ٹماٹر، کبھی پیاز غائب ہو جاتی ہے، کبھی آلو جو ہے وہ 20 روپے بکتا ہے، کبھی آلو 60 روپے کلو بکتا ہے. اب غریب انسان کہاں سے خریدے گا اتنی ساری چیزیں؟ ہر چیز ہے نا، ہر دوسرے دن جائیں گے نا وہ قیمت اس سے دگنی ملتی ہے. آؤٹ ہو جاتا ہے بالکل بیلنس. سیلری کے حساب سے جو مہنگائی چل رہی ہے نا اس کے حساب سے ہماری سیلری بالکل آؤٹ ہو جاتی ہے. دکانداروں کے پاس بھی قیمتیں بڑھانے کے کئی بہانے، لیکن ساتھ ہی فروخت میں کمی کا بھی شکوہ کیا. ٹماٹر کی پیٹی ہم لائیں 1100 روپے کی، اس میں ٹماٹر نکلا ہے 9 کلو. 3 کلو ٹماٹر ہم نے یہ پھینک رکھا ہے، پیچھے پڑا ہوا ہے وہ. اب یہ کیا دام پڑ گیا ٹماٹر آپ بتائیں ہمارے کو، اور کس دام بیچیں گے ہم؟ اب کم پہلے جو 20-25 ہزار کی ہو رہی تھی نا سیل، اب 8-10 ہزار پہ. روز افزوں مہنگائی سے پریشان شہری کہتے ہیں قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کیے جائیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کا مؤثر نظام اختیار کیا جائے تاکہ مہنگائی میں کچھ کمی ہو سکے. کیمرامین محمد عتیق کے ساتھ صفدر عباس، آج نیوز، کراچی. پنجاب میں آٹا، گھی اور سبزیوں سمیت سب کچھ عوام کی پہنچ سے دور ہوتا جا رہا ہے. شہریوں نے حکومت سے مہنگائی کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. لاہور سے طارق خان مزید بتائیں گے. مہنگائی کا طوفان ایک بار پھر تیزی سے سر اٹھا رہا ہے. سرکاری آٹا مارکیٹ سے غائب، جبکہ دیگر اشیاء ضروریہ بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں. مہنگائی قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے. پیٹرول کی سمری 45 روپے پلس چلی جائے گی تو مزید چیزیں بڑھ جائیں گی. ہر چیز دیکھ لیں کہ جہاں وہ ریٹ کہاں تھا اب کہاں سے کہاں پہنچ گیا، تو اس حساب سے ہمیں تو نہیں کچھ نظر آ رہا کہ کچھ صحیح ہو رہا ہو. شہریوں کا کہنا ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے لیے جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. بہت برے حالات ہیں. جو اگر 600-700 یا 800 روپے کا ملازم ہے وہ تو کھانا مشکل ہو گیا ان کے لیے. مہنگائی تو بہت ہے، ایک ٹائم پکا لو 4 ٹائم کھا لو، یہ ہو رہا ہے. عام مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1320 روپے، گھی 450 روپے سے 500 روپے کلو، مرغی کا گوشت 407 روپے، چھوٹا گوشت 1800 روپے، جبکہ پیاز اور ٹماٹر 100 روپے کلو میں فروخت ہو رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت ہنگامی بنیادوں پر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرے. کیمرامین محمد ندیم کے ساتھ طارق خان، آج نیوز، لاہور. شوگر ملز ایسوسی ایشن نے چینی 70 روپے کلو فروخت کرنے سے انکار کر دیا ہے. ایسوسی ایشن نے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے. ترجمان کا کہنا ہے کہ 20 لاکھ ٹن اضافی چینی پیدا ہوئی، 15 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی اجازت دی جائے.
पंजाब हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन में डेडलॉक बरकरार। एसोसिएशन ने चीनी सस्ती करने से इनकार कर दिया। तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वजीर आला पंजाब की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा चीनी 70 रुपए किलो नहीं दे सकते। इस इक़दाम से इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। मुल्क की जरूरियात से 20 लाख टन ज्यादा चीनी पैदा हुई। हुकूमत 15 लाख टन चीनी बरामद करके ज़र मुबादला हासिल करे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने गुज़िश्ता रोज शुगर मिल्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात की। उन्होंने ऐलान किया था कि शरीफ खानदान की तमाम शुगर मिल्स 70 रुपए किलो चीनी फरोख्त करेंगी। उन्होंने चीनी सस्ती करने के लिए एसोसिएशन को 24 घंटे का वक्त दिया था। शुगर मिल्स एसोसिएशन के ऐलान के बाद सूरत हाल गंभीर हो चुकी है। देखते हैं हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। और अब बात करते हैं मौसम की। मुल्क भर में सूरज आग बरसा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का खदशा मंडला रहा है। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में हैं। शहीद बेनजीराबाद और जैकबाबाद में पारा 51 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी हीट स्ट्रोक का खदशा है। महकमे मौसमियात का कहना है कि बेशतर इलाकों में गर्मी की लहर मई के आखिर तक बरकरार रहेगी। बालाई इलाकों में आज से हल्की बारिश का इम्कान है। सख्त गर्मी से परेशान कराची के शहरियों को बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग ने निढाल कर दिया है। रात दिन तवील लोड शेडिंग से न सिर्फ शहरियों के घरेलू अमूर बल्कि रोजगार भी मुतासिर हो रहे हैं। सफदर अब्बास की रिपोर्ट देखते हैं। सुबह हो या शाम, न दिन को चैन न रात को आराम। कराची में बिजली की बंदिश कभी भी कहीं भी। बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर दिया। 3 दफा 4 दफा रात को भी चली जाती है। 1-1, 2-2 बजे के टाइम पे चली जाती है लाइट, और फिर रात को 3, 3:30, 4 बजे आती है। छोटे घर है, हवा नहीं है, बच्चे परेशान है, हम खुद परेशान है, बीमार आदमी है, क्या करे। 9 बजे गई हुई है, 11-12 बजे आएगी, फिर 2 बजे जाएगी, 4 बजे आएगी, फिर उसके बाद फिर रात को फिर चली जाती है। बहुत परेशान है। आवाम का जीना हराम किया हुआ। छोटे छोटे बच्चे घर में गर्मी से बिलग रहे हैं। लाइट 2 घंटा है तो 4 घंटे नहीं है, पर 2-2 घंटे 3-3 घंटे चला जाता है। रात के तकरीबन 3 से 3.5 घंटे लाइट गई हुई थी, जिसकी वजह से काफी तकलीफ रही। गर्मी बढ़ती जा रही है और लाइट की लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। 12 घंटे तक बिजली की तवील लोड शेडिंग से शहरियों का रोजगार भी मुतासिर है। अभी तक कोई भी काम पे नहीं आया, क्योंकि रात भर लाइट नहीं होती है, नींदें पूरी नहीं हो रही हैं, बच्चे परेशान हैं। काम हमारा इतना स्लो हुआ, इतना परेशान हुए कि जाहिर बात है काम गाड़ी खोलते हैं तो लाइट नहीं होती, लेते काम नहीं हो पाता। 2.5 घंटे की 3 दफा जाती है, उसके अलावा चले जाए तो वो अलग है। किसी को कंप्लेन करो, कुछ सुनवाई नहीं है किसी किस्म की भी। लेट हो जाते हैं और जो इस्त्री नहीं होती कपड़ों में। फिर जो है रोजाना लेट जो है तकरीबन ना लेट ऑफिस पहुंच रहा हूँ, तो ऑफिस जो है सारे ना हमारे वो भी बहुत जो ना चरान कर रहे हैं, थोड़ी सी बोल रहे हैं यार ये कोई टाइम है, आधा घंटा 1.25 घंटा रोजाना जो ना मैं लेट हो जाता हूँ। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि कराची के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक है। क्वेटा में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। गर्मी के सताए शहरी पीने के साफ पानी को भी तरस गए हैं। मोहम्मद खालिद मजीद बताएंगे। कोयटा और गिरदनवा के इलाकों में बिजली की अदम फराहमी के बायस पानी का बहरान संगीन हो चुका है। वासा के ट्यूबवेल भी मिली भगत के जरिए बंद कर दिए गए हैं। हम लोग कभी एक दूसरे घरों से भीख मांगे पानी ले रहे हैं। दर पदर है ना, खुदा के लिए इस्लामाबाद तक ये बात जावे कि ना बलूचिस्तान कोयटा में ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस, कुछ भी नहीं है। 5 मिनट पे बिजली चलती है, 5 मिनट बंद। इतना हालत खराब है, गर्मी, पानी नहीं, बहुत मसला है इधर। कोयटा में 14 से 16 घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने पानी के बहरान को मजीद संगीन कर रखा है, जिसके बायस टैंकर माफिया मुंह मांगे दाम वसूल कर रहा है। जामे पॉलिसी न होने की वजह से पानी का वसूल शहरियों के लिए जुएशीर लाने के मुतरादिफ हो चुका है। कैमरामैन मोहिबुल्लाह के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज, कोयटा। जिला बदीन में भी पानी की किल्लत बरकरार है। साहिली और टील के इलाका मकीनों का जीना दुश्वार हो चुका है। काश्तकारों का कहना है कि पानी की मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। इसी वाले से देखते हैं, इमरान अब्बास रिपोर्ट करें। टेल और साहिली पट्टी का आखिरी जिला बदीन, जिसके मकीन इस वक्त ज़राई और पीने के पानी के लिए शदीद परेशान हैं। पानी के हुसूल के लिए हर रोज सड़कों पर एहतजाज करते हुए टेल के काश्तकारों का कहना है कि पानी की किल्लत जरूर है, लेकिन बदीन का पानी बाअसर वडेरे चोरी करके अपनी जमीनें आबाद कर रहे हैं। ये इरिगेशन और सिंध गवर्नमेंट के अपने मुफाद है, जो वो पानी शार्टेज के बहाने उसको छुपाना चाहते हैं। शार्टेज है, मगर उसकी बदतरीन मिसाल ये है कि हमारे हुक्मरानों के पास पानी है। बदीन के टेल और साहिली इलाके
के मलकानी, पंगरू, कडन, बेडमी, सिरानी, अहमद राजू और दीगर इलाकों में पानी न होने के बायस जमीनें बंजर हो चुकी हैं, जिसके बायस इलाका मकीनों ने भी नकल मकानी शुरू कर दी है। जिला बदीन के काश्तकारों और शहरियों ने मुतालबा किया है कि नहरी निजाम पर रेंजर्स तैनात करके चोरी होने वाले पानी को रोका जाए ताकि टेल और साहिली इलाका मकीनों को जीने के लिए पानी मिल जाए। इमरान अब्बास, आज न्यूज, बदीन। अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ आज फैसलाबाद में पावर शो करेगी। जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसागाह के अतराफ बड़ी स्क्रीनें भी नस्ब कर दी गई हैं। मजीद जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे अजीम शहजाद हमारे साथ मौजूद है। अजीम, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज धोबी घाट ग्राउंड में होने वाले जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बस इन्हें हतमी शक्ल दी जा रही है। 12,000 से ज्यादा इस जलसागाह में कुर्सियां लगाई गई हैं। लाइटिंग, साउंड सिस्टम जो है वो भी नस्ब कर दिया गया है। फिर मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है कि इस तरफ एक बड़ा स्टेज 80 फुट लंबा और 36 फुट ऊंचा जो है वो स्टेज बनाया गया है। फिर इस स्टेज के दाएं जानब खवातीन इंक्लोजर है और बाएं जानब मीडिया के लिए कंटेनर जो है वो लगाए गए हैं। इस जलसागाह के अंदर और अतराफ में बड़ी स्क्रीनें भी नस्ब की गई हैं। जलसागाह में कारकुनों की आमद जो है वो शाम 7 बजे शुरू होगी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो 8 बजे के करीब इस जलसागाह पहुंचेंगे और कारकुनों से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इस जलसागाह को में 1200 से ज़ायद अहलकार जो है वो ड्यूटियां देंगे, जबकि इमरान खान की सिक्योरिटी को जो है वो एलीट फोर्स ड्यूटी अंजाम देगी। उन्हें अपने हसार में यहाँ जलसागाह में लाया जाएगा। इस जलसे में इमरान खान, शेख रशीद, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी समेत दीगर सीनियर रहनुमा जो हैं वो खिताब करेंगे। जी, शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके में ईरान शाह में खुदकुश धमाका। ISPR के मुताबिक धमाके में 3 सिक्योरिटी एहलकार और 3 बच्चे शहीद हो गए हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर ने धमाके की मज़म्मत की है। हम दुश्मनों का एक और वार। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके ईरान शाह में खुदकुश हमला कर दिया। 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। ISPR के मुताबिक पाकपतन के लांस हवलदार जुबैर कादिर, हरीपुर के सिपाही अजीज असफर और मुल्तान के सिपाही कासिम मकसूद उमर शहीद हुए। 4 साला अनम, 11 साला अहमद हसन और 8 साला एहसन भी जाँ बहक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने धमाके की मजम्मत कर दी। उन्होंने कहा कि पाक अफवाज की कुर्बानियां तारीख का सुनहरी बाब हैं। शोहदा पर कौम को फख्र है। बच्चों के कातिल इस्लाम और इंसानियत के दुश्मन हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पूरी कौम पाक फौज के साथ है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात पर तशवीश का इजहार कर दिया। बुनेर में जमीन के तनाजे पर 2 गिरोह में फायरिंग से बाप और 2 बेटे समेत 4 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। आपको बताएं कि बुनेर में जमीन के तनाजे पर 2 गिरोह में फायरिंग से बाप और 2 बेटे समेत 4 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है। और खबर दें आपको कि ननकाना साहब में कश्ती पर दरिया उबूर करते हुए 8 अफराद डूब गए हैं। इमदादी टीमों ने 4 अफराद को बचा लिया है और 4 बच्चों की तलाश की जा रही है। इस पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अफजल हक। चौधरी अफजल हक, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देखी जा रही है? कितने लोगों को अब तक रेस्क्यू किया गया है? हमारे नुमाइंदे से इस हवाले से मजीद भी जानेंगे। आपको बताएं, ननकाना साहब से ये अफसोसनाक खबर आ रही है जहां दरिया रावी में 8 अफराद डूब गए हैं। 4 अफराद को बचा लिया गया है। 4 बच्चे इस वक्त भी तलाश किए जा रहे हैं, जिनके हवाले से अभी तक कोई इतला सामने नहीं आई है। 4 बच्चों की तलाश की जा रही है। इमदादी टीमें काम कर रही हैं। 4 अफराद को बचा लिया गया है। ननकाना साहब से आपको अपडेट कर रहे हैं जहां दरियाए रावी में यह अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां दरिया उबूर करने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल किया जा रहा था। 4 अफराद डूब गए थे जिनको निकाल लिया गया, जबकि 4 बच्चों की तलाश अभी की जा रही है। पेशावर के थाना सरबंद की हुदूद में फायरिंग से अक़लियती बिरादरी के 2 अफराद जाँ बहक हो गए। मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। आपको बता रहे हैं कि पेशावर के थाना सरबंद की हुदूद में फायरिंग से अक़लियती बिरादरी के 2 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। कसूर में शौहर ने तशद्दुद करके कुव्वते गोयाई और समात से महरूम हामला बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम और उसका भाई फरार हो गए हैं। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। DPO कसूर ने जल्द मुलजिमान की गिरफ्तारी की यकीन दहानी करा दी है। मकतूला सफिया 6 माह की हामला और 2 बच्चों की मां थी। मुलजिम आमिर मुय्यना तौर पर 2 बेटियों को भी कत्ल कर चुका है।
मुल्क में रवां बरस पोलियो का तीसरा केस सामने आ गया। शुमाली वजीरिस्तान के 1 साला बच्चे में वायरस की तस्दीक हो गई है। वजारत सेहत ने पोलियो का तीसरा केस सामने आने पर तशवीश का इजहार कर दिया। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि पोलियो का खात्मा ना होना बड़ा अलमिया है। वायरस के तदारुक के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात का सिलसिला जारी है। वजीर सेहत ने केसेस रिपोर्ट होने के बाद KPK का दौरा किया। कहा वो खुद पोलियो के खात्मे की कोशिशों की निगरानी कर रहे हैं। चित्राल की वादी कैलाश में सदियों पुराना त्योहार जोशी की रानाइयों आबूताब से जारी है और ये त्योहार 5 दिन तक जारी रहेगा। नासिर ज़ादा की रिपोर्ट देखेंगे। वादी कैलाश में हर साल बहार की आमद पर कैलाश कबीला हजारों साल पुराना त्योहार जोशी मना रही है। इस साल भी जोशी त्योहार का आगाज हो गया। जोशी त्योहार मजहबी रसूमात के साथ वादी रंबोर में शुरू हो गया और 5 दिन तक जारी रहेगा। कल्चर मैंने ये देखा कि सिर्फ हम होरी यहाँ पे नहीं है, हमारे साथ यहाँ पे बहुत से लोग दूसरे आए हुए हैं। कोई यूनान से है, कोई थाईलैंड से आया हुआ है, कोई जो ऐसे मुझे यहाँ मिले हैं उससे मैं फुटबॉल चल लिया। ये एक बहुत अच्छा एक रक्स, एक बहुत अच्छा कल्चरल डांस है। फेस्टिवल में कैलाश कबीले की ख्वातीन अपने महसूस लिबास में रक्स करती है, दूध तकसीम करती है और मुख्तलिफ पकवान भी तैयार करते हैं। जोशी फेस्टिवल देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सियाहों ने वादी कैलाश में डेरे डाल दिए हैं। नासिर ज़ादा, आज न्यूज, चतराल। मुल्क भर में जहां गर्मी जोरों पर है वहां गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादियों में मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। सयाहों की बड़ी तादाद सर्द मौसम से लुत्फानंदोज होने पहुंच गई है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे गिलगित से आज न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल रहमान बुखारी। जी आज अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की मौसम की बात करें तो इस वक्त गिलगित में हल्की हल्की बारिश हो रही है, सर्द हवाएं चल रही है। जहां पूरा मुल्क गर्मी की शदीद लपेट में है तो वहां गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत, हसीन और दिलकश वादियों का मौसम जो है वो देखने के काबिल है। यही वजह है कि इस मौसम को एंजॉय करने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से गर्मी के सताए हुए सयाह जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की वादियों का रुख कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की जो खूबसूरत वादियां हैं जिनमें हुंजा है, नगर है, अस्तोर है, गिजर है, ब्यामर की वादियां है, गिलगित की वादी है, तो इन वादियों में सयाहों की एक बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है और यहाँ के सर्द मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। जी।